मतलब that is not sustainable for guys like us. But मैं चीट भी जब करता था तो मैं इस मैनर में करता था कि मेरे को तला हुआ नहीं खाना. मैं तला हुआ तो मैं अभी भी बहुत ही कम खाता हूँ. नट क्रैकर भी नहीं, नट क्रैकर भी नहीं. कहाँ पे? नट क्रैकर्स. नट क्रैकर्स नहीं यार. I eat simple peanuts. Peanuts are very good source of fats. मतलब अच्छे fats. There are terms called good fats. That is another thing हाँ. that I wanted to say कि मतलब हमने Good complex fats fats की and बात bad करी है. fats. हाँ. हाँ. Fats पे हम लोग there are good fats and bad fats. Vegetable oil, any kind of vegetable oil, refined oil is bad fat. Ghee, olive oil, these are good. It's a good fat. Ghee, खाओ ghee. Everything you eat in moderation, but butter से अच्छा घी है. अगर तुम पराठा खा रहे हो, घी लगाओ, butter मत लगाओ. There is a reason why it is called clarified butter, because उसमें से जितना कोलेस्ट्रॉल, मतलब ठीक है कोलेस्ट्रॉल होता है, बट लाइक उसमें से काफी सारी चीजें ना बर्न अप हो जाती हैं जब तुम बटर को, मतलब मक्खन से घी बनता है ना, तो मक्खन को जब तुम हीट अप करते हो उसमें काफी सारी चीजें बर्न ऑफ हो जाती हैं, एंड दैट रेसिडुअल जो घी बचता है दैट इज प्योर अनसैचुरेटेड फैट. उसमें सैचुरेटेड बहुत ही कम होता है. यू डोंट वांट सैचुरेटेड फैट. और मूफा इज अ गुड थिंग. Mufa is monounsaturated fatty acids. And PUFA is polyunsaturated fatty acids. So Mufa and PUFA is a good thing. Eat that. Peanuts is a good source. अगर like I am in Los Angeles में it's a fad कि avocados खाओ. मतलब it's a LA thing. Oh, avocados and toast. So I eat a lot of avocados because it's good fat. Or peanuts is very good, but not nutcracker, please. That spoils everything. It's like that is fried. it's like तुम पनीर खा रहे हो उसके लिए, but तुमने उसको साला डायरेक्ट तल दिया. नहीं. So eat peanuts, seeds, nuts, seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds, flax seeds, chia seeds. Lot of things you can do with that. Nuts में all nuts. कोई भी nuts खा लो, they are good with good fats. But then again, in moderation, and like you don't have to, if you are tracking, don't cross your threshold of fats. मैं हमेशा करता था. मेरा हमेशा मतलब ऐप में मेरा हमेशा 150 या 200% पे होता था fats. That is the reason. There is a reason for it, because I was following keto. Not a perfect keto, but like a hybrid of keto and intermittent fasting. So, अच्छा. Yeah. So अगर आपको गुड फैट्स का एक अच्छा सोर्स चाहिए तो हमेशा मतलब what I used to do was I used to like consume भीगे हुए बादाम and walnuts. So I used to consume them a lot when I was मतलब जब मैं जिम जा रहा था. अभी तो मैं मतलब different way of exercise कर रहा हूँ. I'm using resistance and calisthenics now at home. But जब जिम जा रहा था तो I used to take that, and after gym I used to take protein. So protein में मैंने normal whey नहीं लिया था. So I would discuss that topic कि मैंने मतलब I think संचित ने शायद प्रोटीन यूज नहीं किए हैं. यार प्रोटीन मत डिस्कस कर यार. मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना बाहर. मतलब that is one of my pet peeve कि बहन चोद प्रोटीन डिस्कस कर रहा है. So I know that is why I'm not discussing this. मतलब मैंने इस चीज पे बहुत रिसर्च किया. क्या टॉपिक है ना प्रोटीन को डिस्कस करना. भाई मैं ये प्रोटीन खाता था, एक कप ये डाल लिया, ये कर लिया, ये बन गई चट. So it is not necessary. मतलब ये संचित बिल्कुल सही बोल रहा है. It is not necessary, but मेरे डाइट में what I found was like I was in shortage of 30 to 40 grams of protein जो मुझे फील हो रहा था. मतलब जब मैं ट्रैक करता था शुरू में I didn't consume protein at all. मैं अंडे ज्यादा खाता था. So अंडे I used to consume like 4 to 6 eggs in a day, and those were egg whites. मतलब मैं By the way, I'm just putting it in context. I'm a vegetarian who eats eggs. Surprise also vegetarian who eats eggs, I guess. या तू मीट खाता है? मतलब नहीं खाता. मतलब मैं ज्यादा नहीं खाता. घर पे तो कहाँ ही बनता है. घर पे तो नहीं बनता. But yeah, I've been a vegetarian, so मेरे protein sources अलग थे. Yeah. हाँ. So अंडे I used to consume like 4 egg whites in a day,
बट उससे भी मेरा प्रोटीन कंटेंट पूरा नहीं होता था. प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर लूजिंग वेट, क्योंकि जब भी आप वेट रिड्यूस करते हो तो यू नीड प्रोटीन्स टू रिपेयर योर मसल फाइबर्स, क्योंकि वेट रिड्यूस करते टाइम यू एक्सरसाइज अ लॉट, and whenever you exercise you break your muscle fibers, and to repair those muscle fibers you need protein. So that is the basic need of protein in your diet. तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरा प्रोटीन कंटेंट उस लेवल पे रीच नहीं कर रहा है. तो देयर इज अ साइंस बिहाइंड हाउ मच प्रोटीन यू शुड कंज्यूम इन अ डे. वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बस क्योंकि अगर डीप पे चले गए तो बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च है. बट लेट्स कीप इट देयर. मतलब मैं अगर डिस्कस करने लगा कि मैंने क्या क्या रिसर्च किया है इस पे क्या नहीं किया, सो इट वुड गो इन वी वुड डिवेल्व इन डिस्कशन इट वुड take like another half an hour or 45 minutes or so. So let's not go there. But जो mental state पे बात चल रही थी पहले, तो उसका यही था कि everybody used to motivate me and that used to fill me around with positive energy. So it was different than case of संचित. जैसे संचित बोला था कि उसे criticism से काफी motivation मिलता था, मुझे लोगों की positive energy, लोगों के positive comment से काफी motivation मिलता था. So whenever I was just to be fair for my audience, मेरे को positive comments मिले थे, ऐसा नहीं है कि मेरे को सारी negative मिले थे. कि मतलब भाई अगर मैं किसी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ और वो ये देख रहा है और तू सोचे कि साले मैंने तो तेरे को पॉजिटिव दिया था तो साले हमारे को एक्नॉलेज ही नहीं करा. आई एम एक्नॉलेजिंग. मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले थे, बट पॉजिटिव कमेंट्स, आई लुक पॉजिटिव कमेंट्स एज गुड थिंग टू बूस्ट योर मोरल. बट हाँ मतलब मोरल के लिए पॉजिटिव और बूस्ट के लिए मतलब वर्कआउट के लिए नेगेटिव. कि हाँ मतलब I get it. So एक और जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे डिस्कस करनी थी यार, कि आप जब आप वेट लॉस पे जब जाते हो ना, तो मेरे हिसाब से किसी कंपेनियन का होना जो मतलब आपके मतलब जैसे मैंने जब संचित को देखा था तो इट मोटिवेटेड मी अ लॉट. मतलब I would like to say that on this platform, because जब मैंने संचित को देखा मैं यार ये तो मतलब अपने जैसे तो यार इसने क्या कर लिया. So तो मतलब that thing motivated me a lot. और मेरे साथ एक कंपेनियन था मेरे ऑफिस में राइट नाउ. जब मैंने जब अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया तो उसके एक महीने बाद आई जॉइंड माय जॉब. मतलब for 1 month I had some time to exercise as freely as I can, but rest of the routine, rest of the weight that I reduced was along with my office. So people used to ask me यार कि तू ऑफिस के साथ इतना सब कुछ कैसे कर ले रहा है. So I used to tell them, if you want to find time you will. It's just a matter of keeping yourself disciplined. मतलब अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो मैं नहीं हो निकाल लोगे तुम. एक वो था. एंड दूसरा एक पॉइंट ये था कि मेरे साथ एक कंपेनियन था मेरे ऑफिस में, सो मैं उसके साथ काफी चीजें डिस्कस करता. तो ही वाज अ सीजन्ड जिमर. वो जिम करता था, ही वाज इनटू कैलिस्थेनिक्स, ही वाज इनटू फिटनेस थिंग्स, मतलब लाइक अ लॉट. तो मैं उससे काफी चीजें करता था. तो अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा है जो फिटनेस में थोड़ा बहुत मतलब अपने आप को इन्वॉल्व करता है, so it's better to like dwell into discussions with him, to ask him कि यार तूने कैसे किया, तुम क्या फॉलो कर रहे हो. so gather as much knowledge as you can. उस बंदे ने मेरे को बहुत सारी चीजें बताई जो मैं शायद फॉलो नहीं करता था. तो मैं उससे पूछता था कि यार तू चीज के लिए क्या करता है, उस चीज के लिए क्या करता है, ये चीज कैसे करता है, इस एक्सरसाइज में ऐसे ये चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. तो आई यूज्ड टू आस्क हिम कि अच्छा ये करना है. तो मैं उसको बोलता था कि यार मेरे मतलब अभी प्रॉब्लम है, बट एप्स के साथ मेरा हमेशा प्रॉब्लम रहता है, तो मेरे कभी एप्स नहीं आते. तो मैं उससे बोलता था कि भाई इसके लिए क्या करूं मैं. वो बोलता कि नहीं ये पूरा का पूरा डाइट पे डिपेंडेंट है. बोलता अगर तू डाइट में बिल्कुल फैट कम करेगा तभी तेरे एप्स दिखने शुरू होंगे, वरना नहीं होंगे. तो दैट इज समथिंग. तो पीपल बहुत स्ट्रगल करते हैं इस चीज के साथ कि मतलब कि यार मेरे एब्स नहीं आ रहे, मेरा ये मसल नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा. तो ये उसके पीछे कुछ साइंस होती है. So that I मतलब मुझे उस बंदे से पता चली कि यार हाँ, फिर मैंने रिसर्च किया कि अच्छा इसके पीछे क्या चीज है. तो मतलब ये सब चीजें कोई एक अगर आपके साथ एक ऐसा बंदा है जिसको इस चीज की नॉलेज है, so it's better to dwell with him, ask him कि उसका क्या जर्नी रहा. So माइक जो मेरे साथ था बंदा ऑफिस में, उसके इंजरीज हुई थी, शोल्डर का इंजरी, which is a very severe one, and after that he was lifting weights and all, और मतलब उसने काफी रिकवर किया था अपने आप को. तो उससे उसका जर्नी पूछना, उससे जानना कि उसने कैसे किया, एंड दैट
recollecting those facts and implying or applying those learnings into your transformation journey. That is a very important thing. उससे भी बात कि करेंगे फिर आप हम. उसे सीखो, आप उसे सीखो और अपने जर्नी में इंक्लूड करो. तो वो भी एक चीज मैंने करी थी. मतलब मैं उसे काफी बात करता था. हिज नेम इज राहुल. सो उससे काफी बात करता था मैं. काफी चीजें मैंने सीखी उससे और मैंने उसको अप्लाई भी किया काफी जगह, मतलब अपने जर्नी में. That helps. That really helps if you can discuss it with someone who is, मतलब who you consider that has that knowledge. अगर मुझे और संचित से कोई चीज पूछ रहा है, तो we guys we are not experts per se, but we know some things. We know some things. So we know things that work for us. Yes, we know things that work for us. It might or might not work for you, but definitely some of the things might. मतलब अगर 100% काम नहीं करेगा तो 30-40% तो कर जाएगा. एटलीस्ट इतना तो हम जानते हैं कि शायद कर. तो it's better to discuss it with someone who knows those things. तो ये एक पॉइंट में मतलब बोलना चाहता था. So this is how, मतलब मेंटल साइड ऑफ थिंग्स ये थे पूरे के पूरे. अच्छा. तो काफी कुछ कवर कर लिया हमने. वैसे काफी पॉइंट्स आ गए खाने के, डाइटिंग के. उसके अलावा अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो तुम ना ये सब? मतलब इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल नाउ. इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल डेफिनेटली. या फिर मेरा यहाँ आके चेंज हो गया था. नहीं, यहाँ पर आके क्या होता, बिफोर आई केम हियर आई वाज लाइक इट वाज अ लाइफस्टाइल. आई वाज वर्किंग आउट अ लॉट, कीपिंग माय डाइट इन कंट्रोल. यहाँ आके क्या हुआ, आई वाज वर्किंग आउट बट माय डाइट चेंज अ लॉट. है ना, अमेरिका में आके चीज एंड शुगर आर लाइक टू थिंग्स दैट विल रियली फक यू अप. क्योंकि इंडिया में हम चीज खाते थे, सो यू डोंट गेट मच चीज. मतलब ठीक है चीज मिलती है, बट द ओनली चीज दैट वी गेट इन इंडिया इज वो चीज स्प्रेड अमूल वाला और चीज स्लाइसेस. सो दैट इज लाइक हेवीली प्रोसेस्ड चीज. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यू गेट thousands of cheeses, मतलब अलग अलग चीज. and cheese is a big part of American food, so I kind of went into that. मैंने सोचा था कि मेरे को पता है कि मेरे पास कंट्रोल है, I won't do that. but यहाँ पर आगे things change. like anything and everything you get has cheese on it, and cheese is pure cholesterol and fat. तो यहाँ पर आगे मेरे काफी चेंज हो गया था. I was running, मतलब ठीक है, I was running, I used to run 25-30 kilometers a week. That I was doing even here. हाँ, so I was doing that even here, but my diet changed and that's why I gained after coming here. और जो मैंने जब पतला होके पूरे कॉन्फिडेंस से मैंने जो मीडियम साइज की शर्ट खरीदी थी, वो अब नहीं आ रही मेरे को. अरे भाई 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 भाई. वापस. तो या I don't want to buy more shirts, तो इसलिए मैं वर्कआउट ज्यादा कर रहा हूँ और डाइट कंट्रोल. शर्ट वापस फिट हो जाए. तो लेकिन अब तो इतना एफर्ट नहीं लगता होगा. ये ना ये मैं एक पॉइंट बस यही कहना चाहूंगा कि जो ये वेट इजीली गेन करने वाला जो एक वो है ना ट्रेड, वो टाइप ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करता है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज जनरली: एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स एंड ऑक्टोमॉर्फ्स. एक्टोमॉर्फ्स, राइट प्रोनाउंसिएशन. तो मैं और संचित शायद एंडोमॉर्फ्स वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं. So we people generally have a tendency to gain weight very easily. So it's very important for guys like us to exercise a lot. And I guess Binny, जब तू अपना मतलब एग्जामिन करेगा अपना फैट्स एंड ऑल, you would know कि in which body type you are falling. अच्छा. तो ये बॉडी, तो ये सब चीजें जब आप चीजें करनी शुरू करते हो ना, तो you would know कि तुम्हारा बॉडी टाइप कैसा है. ये भी एक साइंस है काफी सारा कि बॉडी टाइप के ऊपर काफी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कैसे वेट रिड्यूस करते हो या गेन करते हो. और एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, इस पार्ट को काट दियो. ऐसे डाइजेस्ट करने वाला क्या सिस्टम होता है यार सपरे? मेटाबॉलिज्म. हाँ. तो मैं इस पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ. जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, दैट आल्सो गोज विद यू नो योर बॉडी टाइप, कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कैसा है. I'll give an example, and I'm not being racial here.
but I have noticed people from northeast and people from hilly regions, they have such a good metabolism. I don't know how, but like they have very stiff bodies. Um, I'm not being I'm not being racist here. हाँ I'm just हाँ भाई, saying that कोई सीन नहीं. they उनका there's a reason उनका जो temperatures हैं, उनके जो जहाँ पर वो रहते हैं और जो वो काम करते हैं, so that kind of works around. and जो DNA जो होता है whatever, तुम्हारे को सांगे नोरबू पता है ना, हाँ हाँ हाँ. मतलब वो इतना गंद कचरा खाते थे and they still maintained their muscle, they still maintained their, ये हमारी जो इतनी स्किन ऊपर उठ रही है ना, उनकी इतनी नहीं उठती थी, and they had like a very thin skin. That is a testament that you have a very low fat percentage, body fat. वो कुछ भी खाते थे, it didn't affect them because they have very good metabolism. When you research stuff, you'll get across these things that certain kind of people, not people, like certain kind of set of people, certain community have different set of, because a lot of it depends on DNA. So DNA के हिसाब से काफी कुछ चेंज होता है, and metabolism is one of those things. मेरा metabolism बहुत बेकार है. I most of the North Indians have like fucked up metabolism. छोले भटूरे और आलू पूड़ी खा के इतनी हुई पड़ी है ना, एक हुई पड़ी है. So you have to consider that कि तुम कितना और कैसे डाइजेस्ट करते हो. मैं ग्रीन टी वाले फैट पे भी चढ़ा था, मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा. It is good, I like it, but I don't drink it for like keeping my metabolism up. But definitely working out and improving your diet does bring some changes in your metabolism. It will not change your body type, and that's why I gained back again. Like I think within 3 months I was back 5 kg back up. यहाँ पर आने के अच्छा. बाद. ये होता है. This happens because I like left exercise for around a month in Jan in this year, because there was a lot of the temperatures were very low. So मतलब इतना ज़्यादा कुछ था कि I wasn't able to cope up with the क्योंकि जब जिम जाते हो ना, your body warms up a lot. और उसके बाद एकदम से जब बाहर निकलो and also I felt मतलब मुझे बीमार हो गया था मैं कुछ दिन के लिए. तो I like left gymming for a month क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अभी कंटिन्यू करूंगा तो मेरा बॉडी मतलब जवाब दे जाएगा. तो मैंने कुछ 1 महीने के लिए छोड़ दिया था जिम. तो in 1 month I gained like around like 2.5 kgs. खाना मेरे को याद है अच्छे से. 2.5 किलो मैंने 1 महीने में गेन दोबारा कर लिया था. वो पता था कि मैंने जिम करके दोबारा कम कर लिया. लेकिन this is basically dependent on the type of body that you have. But even if you change your routine like a little bit, a tad bit, you will gain back bit. So हमारे type of bodies के लिए ये मतलब uber important है. मतलब सबसे ज्यादा important है कि हम लोग exercise करते रहें कभी ना. Actually Otherwise सही बात है, सही बात है. तो एक्सरसाइज की बात करने वाला था मैं अभी. हमने काफी कुछ कवर कर लिया, बट एक्सरसाइजेस बताओ. मतलब यार, मतलब एक्सरसाइजेस का ये सीन है कि जिम में तो सर्टेन एक्सरसाइजेस होती है, लेकिन उसमें भी कुछ स्ट्रेटजी है कि मतलब कुछ लोगों का तो होता है कि जैसे तरुण है कि उसको तो अब तरुण का ये स्टेटस है या फिर वासु का ये स्टेटस है कि दोनों हमारे बैचमेट्स हैं कि मुझे इस पार्ट पे फोकस करना है. तो क्या डिफरेंस है वो जो एक्सरसाइज करते हैं और क्या डिफरेंस है जो तुम्हारा फोकस होता है कि भाई वेट लूज करना है, उन दो टाइप की एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है? मैं बताता हूँ इस पे. मतलब सेंस मतलब संजय तू बोलना चाहेगा कुछ? तू बोल, फिर मैं करता हूँ. तो मैंने जब वेट अपना लूज करना चालू किया था, तो वन थिंग आई फोकस्ड अपॉन वाज कि मेरा मसल मास रिड्यूस नहीं होना चाहिए. बिकॉज जब आप मोटे होते हो ना, तो आपका मसल मास रहता है अच्छा. तो आप मोटे से पतले हो रहे हो ना, तो आपकी बॉडी का डेफिनेशन इतना खतरनाक बन सकता है ना, अगर आप ढंग से सब कुछ फॉलो करो. तो
This was something that I felt, and that is why मेरा definition अभी अच्छा है अब मेरी body का, जहाँ तक मुझे पता है. तो मैं क्या करता था कि मैं एक दिन, जैसे मेरे ट्रेनर मुझे alternate days में, मतलब पहले 1-2 महीने मुझे वो हर alternate day पे HIIT कराता. तो HIIT is a type of routine which is called high intensity training workout. Oh, high intensity. So high intensity training में ऐसा रहता है कि within a very short span of time you do a lot of exercises. ठीक है, और एक्सरसाइज में आप रुकते नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं रुकते, and you just go on, आप हाफ रहे हो लेकिन आप कर रहे हो, वो ऐसी एक्सरसाइजेज है. सो उसमें बहुत ही ज्यादा वेट, मतलब फैट लॉस होता है, मतलब लाइक अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ फैट लॉस हैपेंस व्हेन यू डू दैट. उसमें क्या होता है कि आपका जो हार्ट होता है ना, एकदम शूट अप कर जाता है, हार्ट बीट आपका एकदम शूट अप करता है, एंड इवन आफ्टर यू स्टॉप एक्सरसाइजिंग वो बहुत देर तक आपके कैलोरी बर्न होते रहते हैं, बहुत देर तक. लाइक इवन आफ्टर 25 minutes after exercising, the calories are burning in your body because of that high intensity workout that you have done. And the alternate day मैं HIIT करता था. उसके पीछे भी साइंस ये है कि I mean if you are working your muscles and if you are doing HIIT, तो क्या होता है कि मसल्स के पास, मसल्स को ना खाने के लिए चाहिए, यू नो, मसल्स को ग्रो करने के लिए खाना है कुछ. तो तुम या तो उसको प्रोटीन प्रोवाइड करो या तुम तो सप्लीमेंट प्रोवाइड करो, लेकिन लाइक आई सेड कि डेफिसिट में जाना है. डेफिसिट में व्हेन यू आर लूजिंग, तो क्या होता है कि जब मसल्स क्या करती हैं, वो ना फैट को खाना शुरू कर देती हैं. तो वो जब तुम एक्सरसाइज कर भी लेते हो ना, तो मसल जो रिकवर कर रही है, रिकवर करना इज दैट दे आर फीडिंग ऑन यू काइंड ऑफ. मसल्स आर लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसाइड यू. तो जब तू तूने एक्सरसाइज करी, तूने मसल्स को वर्क कर दिया, you don't really lose at the time of exercise. If you are working your muscles, you lose after you exercise. तभी कहते हैं कि sleep is important, क्योंकि जब तुम वर्कआउट कर लो, जब तुम अपने सेट्स मार लो, I am talking about lifting and you know resistance training and all. तो उसके बाद क्या होता है कि when you sleep, तो तब तुम्हारी जो मसल रिकवर हो रही है, तो that is eating up all that fat, that is feeding on the fat, तो fat कम होता जाएगा. That's how you reduce your body fat percentage. तो इसलिए सप्रा जो कह रहा था कि you know it's a process, and that's why people say that you need to rest between your work lifting days. सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर तूने अब तू खाना खा रहा है और तेरे को मैं भगाना शुरू कर दूं और तू खाता जा रहा है 7 साल, so it won't be that good ना. So that is kind of thing कि मतलब तूने आज वर्कआउट किया, it takes 72, not 72, I think 42 hours to recover, 48 hours to recover, something like that. So you need to give your muscle rest. तभी जो है हम अलग अलग पार्ट्स को ट्रेन करते हैं अलग दिन. और तूने आज चेस्ट करा है, तो चेस्ट नीड्स लाइक 72 hours to regain its composure. तो अगले दिन अगर तेरे को वर्कआउट करना है, तो you go for legs, not for chest or not for upper body, because you'll end up working it up again. और फिर उसका वो खाने का जो प्रोसेस होता है ना मसल का, वो रुक जाता है, and then you start doing another thing. I mean that's what I've learned, but yeah. नहीं, it's right. So मतलब जैसे मैं बता रहा था कि मैं हर alternate day HIIT करता था. If I start HIIT on Monday, on Tuesdays I chest and biceps, then another day of HIIT, then shoulders and back, then another day of HIIT, then abs, then legs. So abs and legs में मतलब मैं शुरुआत के कुछ टाइम पे 6 दिन ट्रेन करता था. मतलब then I reduced to 5 because मुझको ऐसा लग रहा था कि मेरा बॉडी रिकवर नहीं कर पा रहा है. बट शुरुआत के 2 या 3 महीने शायद मैंने 7 days में से 6 days ट्रेनिंग करी है. और मेरे को उसके बाद ऐसा फील होता था, कभी कभी डिजी फील होता था. मैं व्हेन आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस, आई यूज्ड टू फील डिजी समटाइम्स, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था कि यार बॉडी में कुछ वीकनेस है. बिकॉज़ माय एज संचित सेट, इट टेक्स अराउंड 48 to 72 hours to recover, to properly recover your muscles. तो मैंने उस टाइम को रिड्यूस किया ताकि आई हैव लाइक 2 days ऑफ रेस्ट फॉर अनदर वीक ऑफ ट्रेनिंग. तो मैं बात अभी भी मैं इनफैक्ट मतलब 5 दिन ट्रेनिंग करता हूँ हफ्ते में, और मतलब 2 दिन का रेस्ट रखता ही रखता हूँ. अच्छा काफी मुश्किल है यार. ठीक है. जैसे लॉकडाउन में वी डोंट हैव जिम्स विद अस राइट नाउ, तो मैंने इसमें बहुत
बहुत मतलब मैंने काफी एक दिन तो मैंने काफी सारे नोट्स, वही जो मेरा पुराना प्रोसेस था जो मैंने बताया कि नोट्स बना के साइड में डालता रहता था चीजें. So I followed a YouTuber again जो resistance bands के थ्रू ट्रेनिंग कर रहा है, तो करता है इनफैक्ट, एंड ही हैज बीन फीचर्ड ऑन bodybuilding.com. तो वो काफी एक इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत अच्छी साइट है, काफी क्रेडिबल साइट है अगर आपको अच्छे लोगों को फॉलो करना है. सो वो मतलब फीचर हुआ उस पर काफी बार. और मैंने रेजिस्टेंस बैंड पे काफी साइंस पढ़ा पीछे की, जैसे संचित ने बिल्कुल शुरुआत में एक पॉइंट बोला था कि एंड्योरेंस, मैंने बोला था एक पॉइंट कि मेरा एंड्योरेंस काफी बड़ा है रेजिस्टेंस बैंड्स का ट्रेनिंग करने के बाद. तो और बैंड्स मतलब अभी के टाइम के हिसाब से, सिंस वी आर इन क्वारंटीन एंड आई डोंट नो व्हेन विल थिंग्स रीओपन, खासकर इन इंडिया, the kind of cases that are springing up every 10K 20K cases every day. I don't know when things will be normal in India. So रेजिस्टेंस बैंड्स ने मुझे तो मतलब मेरा एटलीस्ट मसल मास मेंटेन करने में मुझे काफी हेल्प करा. आई डोंट नो वेदर इट विल हेल्प मी इन गेनिंग समथिंग, बट इट हैज हेल्प्ड मी इन मेंटेनिंग. मतलब एक पंप होती है व्हेनेवर यू आर ट्रेनिंग, यू शुड हैव दैट पंप इन योर मसल्स कि आपकी मसल्स स्ट्रेच कर रही हैं, आपकी मसल्स पंप हो रही हैं. तो वो चीज मेरे को प्रॉपर्ली मैं फॉलो कर पा रहा हूँ, वो चीज मुझे हो रही है. एंड पीपल, मतलब मेरे को बहुत लोगों के डाउट आए थे जब मैंने लोगों को बताया, मतलब अपार्ट फ्रॉम संचित, मैंने संचित को बताया था कि यार मैं रेजिस्टेंस बैंड से ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी, तो मैंने बाकी लोगों को बताया तो वो शॉक थे कि यार अभी रेजिस्टेंस बैंड तो सिर्फ रिहैबिलिटेशन में यूज होते हैं जब इंजरीज होती हैं. तो नहीं यार, ऐसे नहीं है. यू कैन यूज रेजिस्टेंस बैंड टू ट्रेन टू. एंड अभी दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेन. और मतलब अगर आपको फॉलो करना है तो यूट्यूब पे देयर आर मेनी पीपल हु आर टेलिंग अस दीस काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज. और उसके अलावा आई हैव कपल्ड इट विद कैलिस्थेनिक्स. सो कैलिस्थेनिक्स इज विद यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस विद योर ओन बॉडी वेट, मतलब अगेंस्ट वेट. तो कैलिस्थेनिक्स से काफी एक्सरसाइजेस मैंने इंक्लूड करे अपने मतलब ट्रेनिंग रेजिमेंट में. तो मैंने काफी एक वाइड अपने दोबारा से मैंने रेजिमेंट तैयार किया है कि एटलीस्ट अगर मैं जिम नहीं जा पा रहा तो मैं घर पे वर्कआउट कर सकता हूँ. तो मैंने वो उसको डिजाइन किया दोबारा से. सो इट इज अ फन थिंग. मतलब मुझे ये चीज में बहुत मजा आया कि यार मैं दोबारा से, मतलब ये चैलेंज आया मेरे सामने, एंड दैट चैलेंज आई सॉल्व्ड इट बाय लाइक finding and researching things. So it's a very fun process कि दोबारा से चीजें देखी. मतलब यही हुआ था कि मैं आई गेस फ्रॉम 15 to 20 days I was not able to like gym. मतलब मैं जिम जा नहीं पा रहा था या कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था सिंस वी हैव अ लॉकडाउन. तो मतलब कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते. तो पूरा का पूरा मेरा जो पूरा रेजिमेंट होता है अभी घर में ही होता है. मतलब टेरेस पे चला जाता हूँ या के अंदर ही मैं कर लेता हूँ. So I do I warm up my body with HIIT exercises. Sanchit is able to run and all, but यहाँ पे अभी घर वाले मानते नहीं है. घर वाले are very protective of you. तो वो बोलते हैं कि नहीं बेटा कोरोना हो जाएगा, बाहर नहीं जाना. What I do is I do HIIT as warm up. HIIT कुछ एक्सरसाइजेस उठाता हूँ, जैसे 3-4 एक्सरसाइजेस उठाए, I do it as a warm up. Then मैं अपना मसल ट्रेन करता हूँ. Then again cool down के लिए थोड़ा बहुत again I do some HIIT, थोड़ा सा मतलब हल्का सा with reduced reps. So that is something I follow. मतलब I don't know whether that is correct or not, but that is working. So it's fine. संचित, अभी तू क्या कर रहा है? अभी तू कैसे करता है? मेरा प्रोसेस बहुत अलग था. मेरा गोल कभी भी मतलब बॉडी बिल्डिंग वाला नहीं था. लाइक ठीक है मसल होनी चाहिए, बट I didn't want to go that कि साला 18 इंच की बाइसेप है या 20 इंच की बाइसेप है. That wasn't my goal at all. So how I started running from starting. मतलब how I took the weight loss regime is I wanted to do cardio a lot because that's what I learned. कि cardio करो तो होता है. So that's why I started running, and that was also sequential. कि मैं मतलब पहले 1 किलोमीटर से start किया था. And like I was running half the time and walking half the time because at that time, and I would say do not run too heavily when you are heavy because it'll fuck up your joints. Like knees खराब हो जाएंगी, ankles खराब हो जाएंगे, हड्डी तोड़वा के बैठ जाओगे. So take it slowly. मैं 1 किलोमीटर भागता था for like a month. मैं सिर्फ 1 किलोमीटर भागा और मैंने साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस और करी. I'll say if you have access to gym to a swimming pool, go for swimming because it is very easy on joints.
तो दैट इज इजियर. मैंने क्या करा था, मैंने रनिंग शुरू करी थी 1-1 किलोमीटर करके, बट आई प्रोग्रेस्ड और मैं धीरे धीरे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसे आया. और यू हैव टू बिल्ड योर एंड्योरेंस एंड स्टैमिना. तो मैंने ये किया था कि जब मैं 3 किलोमीटर पर आ गया था, तो फिर मैंने 3 किलोमीटर पर स्टॉप कर दिया एंड देन आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग माई एंड्योरेंस. पहले मैं 1 लैप भागता था, मतलब 400-500 मीटर एक रन एक बार में भागता था. तो जब मैं 3 किलोमीटर पर आ गया तो मैं उसको धीरे धीरे बढ़ाकर व्हेन आई वाज रनिंग 3 किलोमीटर इन वन स्ट्रेच, फिर मैं आगे गया 5 किलोमीटर तक. और 5K वाज वन ऑफ माय टारगेट्स बिकॉज रेडिट पे मैं एक उस पे रेडिट पे फोरम है C2 5K, दैट इज काउच टू 5K. मतलब इट इज अ गाइड फॉर यू इफ यू आर सिटिंग ऑन द काउच लाइक वी वर टू 5K, तो तुम्हारा क्या प्रोसेस होना चाहिए. मैंने उसमें कुछ फॉलो नहीं करा, मैंने सिर्फ C2 5K फॉलो किया था कि मेरे को काउच टू 5K पे जाना है. I tried to follow it, but I had to change it along the course according to me. तो यही था कि now I can run 5 kilometers in one stretch, मतलब I won't stop in between. ओ भाई अपना 1 किलोमीटर में सीन सेट हो जाता है. हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, तेरा 1 किलोमीटर में हो जाता है, मेरा 400 मीटर में हो जाता था पहले. नॉट इवन 400 है कि अगर डू रिमेम्बर वो अणु वाला ग्राउंड रनिंग करने जाते थे. हाँ, तो मैं उसमें भी रनिंग करने जाता था. मैं उसमें 75% लैप भागता था, फिर 25% चलता था, फिर 75% भागता था. तो 75% इज 300 मीटर्स. आई कुडंट रन मोर देन दैट. और मेरे साथ कुछ दोस्त होते थे, वो साले 8-8 लैप लगातार भागते रहते थे. ना वो लाइक ये कैसे हो सकता है, बट नाउ आई नो कि ये हो सकता है. सो यू हैव टू बिल्ड दैट एंड्योरेंस, यू डोंट हैव टू शॉक योर बॉडी. और अनलाइक सपरा, आई स्टार्टेड ऑफ रनिंग एंड कैलिस्थेनिक्स. मैंने स्टार्ट ही कैलिस्थेनिक्स से करा था बिकॉज आई वांटेड अ स्ट्रॉन्गर कोर एंड गुड कंडीशन मसल्स. I did have a couple of dumbbells at home, तो मतलब थोड़ा बहुत वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग था कि मैं अपनी मसल ट्रेन कर रहा था, but not too much. And contrary to everyone's belief, I had a set of resistance bands. मैं उनको यूज करता था to train my muscles. चलो तुम करके देखो, रेजिस्टेंस बैंड से बाइसेप कर्ल नहीं मार पाओगे तुम. फट जाएगी. फट जाएगी. I know फट जाएगी. हाँ. But I'm again saying don't take it as it is because resistance band से और काफी सारी complications आ सकती हैं. If you are doing bicep curl, I felt things in my elbow which I shouldn't Yeah. have. So just take care. Shoulders, elbows are very prone when you are doing resistance bands. So I did it myself. जो भी मेरे को इंजरी हुई, मतलब not as an injury, but yeah, I have a shoulder thing here. That is also because of I played a lot of badminton in the last 2 years. उसको ऐसे भी हुआ था. But yeah, coming back to the regime, I used Nike training app a lot. Nike running app for running before. Nike training app में बहुत सारे curated workouts हैं, 45-minute workouts, 30-minute workouts, no equipment workouts जो मैं घर पे करता था. Very effective, I'll say. You will burn a lot of calories. Not a lot, I mean 200-300 calories, but still you can pair it up with other things. And third, मतलब पहला था running, second is calisthenics. Third thing that I started was boxing. Boxing is a very good way of. लेकिन बॉक्सिंग का एक्सेस नहीं है ना सबको. I'll beg to differ. I do shadow boxing right here. Oh, shadow boxing. हाँ, तुम like you do have to go. मैं जिम में जाता था पहले, बॉक्सिंग जिम में. मैंने वहाँ पर 2 महीने ट्रेन किया. आई गॉट द बेसिक्स, बैक वर्क भी किया. ठीक है, तुम्हारे को अगर तुम्हारे को you want the real thing, so go for the bag work thing. But when you are done with bag work, you know what all you have to do, and it requires a lot. So there are two kind of exercise, मतलब workouts, aerobic and anaerobic. Aerobic में you will go with a lot of HIITs aerobic. तुम्हारे को बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, HIIT is anaerobic. HIIT is anaerobic. हाँ, anaerobic is when you don't breathe much. मतलब तुम्हारे को सांस लेने का टाइम नहीं मिलता. Aerobic is
मतलब Opposite. हाँ मतलब Example. of course opposite साले Opposite मतलब मतलब example बता. एरोबिक में ये होता है ना, Example बता. एरोबिक में ये होता है कि you breathe in before हम्म. in between your sets, but उससे क्या होता है कि you don't lose fat or burn fat as quickly. एनारोबिक में क्या होता है, HIIT अगर तुम कर रहे हो, it's like 45 सेकेंड वर्कआउट एंड 15 सेकेंड रेस्ट. तो उसमें क्या होता है कि तुम एक साथ बहुत सारा बर्न कर रहे हो, अपनी बॉडी एकदम वर्कअप कर रहे हो, तो यू लूज लाइक 500 कैलोरीज इन 20 मिनट्स, समथिंग लाइक दैट. Oh. और एरोबिक में क्या होता है कि एरोबिक इज मतलब तुम अगर लिफ्टिंग कर रहे हो दैट इज एरोबिक, क्योंकि तुम हर सेट में Breathe कर कर रहे हो, breathe. हाँ ठीक है. ब्रीथ करते हो तो वो 1 घंटे में तुम 400 कैलोरीज बर्न करोगे. बाय द वे वेट लिफ्टिंग से कैलोरीज बर्न नहीं होती, वो सिर्फ मसल्स के लिए है. सो अच्छा. मतलब अगर तू 1 घंटा वेट लिफ्टिंग करेगा ना, तो तेरी 300 या 400 कैलोरीज बर्न होंगी सपोज. अगर तू 1 घंटा रनिंग करेगा, तेरी 800 कैलोरीज बर्न होंगी. तो देयर मतलब इज डिपेंड करता है आपका गोल क्या है. हाँ, दैट इज वाई कि मतलब ब्रीदिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम्म. आई गॉट इनटू डिटेल ऑफ ब्रीदिंग आल्सो व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग फॉर हाँ बॉक्सिंग, क्योंकि बॉक्सिंग में ब्रीदिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अपार्ट फ्रॉम फुटवर्क. तो yeah, if you're boxing it is very good. If you're doing shadow boxing तुम्हारी upper body के लिए ठीक है. I do a lot of jump rope, मतलब I can go for half an hour continuously on jump ropes. Jump rope is very good for burning calories. Half an hour of jump rope is like 500 calories burn. So, आधे घंटे में you will be good. But jump rope सीखने में टाइम लगता है. I persevered. I did that. I never thought I could, but I did. Now I can do like boxer jump and all. अरे बाप रे Um, बाप. सो हाँ मैं शेडो बैक बॉक्सिंग मैंने कभी कभी करी है बट विद डंबल्स इन हैंड. सो छोटे डंबल्स मतलब छोटे वेट के डंबल्स अगर आप अरे करके यार भी करते हो तो इट नेक्स्ट इज लेवल. हाँ, हेवी ऑन बॉडी. सुपर सीन सो लेवल टू. that is that is that is a workout. Okay, so हाँ if you have dumbbells in hands, so it is a workout for your shoulder. This thing deltoid. एग्जैक्टली Deltoid. I won't go into मतलब वो साइंस बिहाइंड एंड ऑल ब्रो. द मसल्स आई नो. हाँ मैं ब्रो साइंस में नहीं जाऊंगा, ब्रो साइंस वाला काम अरे नहीं है. बाप रे बाप. ये वाला जो एरिया है, ये वाला इफेक्ट होता है. तो हाँ मतलब वो डंबल वाला बॉक्सिंग सबसे कम वाला 1 किलो 2 किलो वाले से करो. बट दैट हाँ इज इफ यू हैव ट्रेन इन बॉक्सिंग. ये नहीं कि चलो तुम जाती हो तुम डंबल उठा लो. या ट्रेन इन बॉक्सिंग. बॉक्सिंग से बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, तो यू डू दैट. बॉक्सिंग के साथ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योगा. इफ यू वांट टू डू बॉक्सिंग यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यू नीड योगा. आई डिडंट लाइक योगा एट ऑल, क्योंकि बहुत स्लो था मेरा. मतलब आई वाज लाइक कि मेरा टाइम टू कैलोरीज बर्न रेशियो कितना है. सो योगा वाज द मोस्ट अनप्रोडक्टिव थिंग फॉर मी, बट आई हैड टू डू इट. इट्स अ सप्लीमेंटल थिंग. सो यू नो व्हेन यू पेशेंस आर चाहिए बहुत. पेशेंस ही. एंड अपार्ट फ्रॉम पेशेंस इफ यू आर इन मतलब मेरा यार मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मेरे को दिन में 15 से 18 घंटे काम करना है. तो आई कांट स्पेयर 1 आवर फॉर योगा, जिसमें साला तुम ऐसे बस ये करते रहो. नहीं, वो दैट इज नॉट माय थिंग. कि मतलब लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो एंड ऑल. आई कांट डू दैट बिकॉज इट्स नॉट प्रोडक्टिव फॉर मी. सो या ठीक है. बट गॉट इट. मैंने आई स्टॉप माय मतलब ग्राइबिंग. योगा योगा मतलब इफेक्ट करता है इन स्ट्रेचिंग एंड ऑल. मतलब मैंने कुछ एक्सरसाइजेस उठाई हैं योगा से. मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने पूरा का योगा सीखा, बट आई हैव पिक्ड अप सम एक्सरसाइजेस व्हिच आर वेरी हेल्पफुल इन स्ट्रेचिंग आउट योर मसल्स. मतलब आप जब वर्कआउट कर लो उसके बाद आपकी मसल्स ना स्टिफ हो जाती हैं काफी, एंड देयर आर वेरी वेरी ह्यूज चांसेस ऑफ एन इंजरी आफ्टर दैट. अगर आपने गलत थोड़ा सा कुछ काट गया हो गए तो. सो उसके बाद ना आपको की मसल्स को स्ट्रेच करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर योर वर्कआउट. तो उसमें Before and योगा के कुछ after, पोजीशंस हैं. not just after, before and after any workout, stretch your muscles, हाँ or else you'll fuck up. मतलब कोई या लिगामेंट टूट एग्जैक्टली. जाएगा, कोई मसल टूट जाएगी, कांड हो जाएगा. तो अरे बाप सो रे. कुछ मैं पोजीशन भाई योगा माफ के करो ऐसे मुझे, आप माफ करें मुझे, आप सारे माफ करें. बिन्नी इज लाइक चल यार पॉडकास्ट हो गया यार, चल चल ओके. मैं जाके भुजिया खाऊंगा. जैसे कुछ पोजीशंस हैं, जैसे कोबरा आसन रहता है एक. कोबरा आसन इज वेरी हेल्पफुल इन मतलब रिलैक्सिंग योर
तो muscles. यार तो मतलब वो बता रहे कि सुबह सुबह कोबरा स्ट्रेच बोलते हैं उसे, कोबरा स्ट्रेच बोलते हैं कभी कभी. एग्जाम देने जा रहे होते एक हैं ना होता सुबह सुबह रास्ते में, क्लास जा रहे होते एग्जाम, रास्ते में बता रहे थे भाई ये भी आ रहा है, ये भी पढ़ लेना. ऐसे ही चाइल्ड पोज रहता है, एक चाइल्ड पोज योगा आसन, तो अरे वाह वाह वाह. काफी इफेक्ट रहता है. धनुरासन रहता है, उससे आपके बैक मसल्स काफी अच्छे स्ट्रेच होते हैं. तो कुछ कुछ आसन जो है आपको स्ट्रेचिंग में बहुत हेल्प करते हैं, मतलब स्ट्रेचिंग योर मसल्स एंड ऑल. Child's pose or cobra asana is like my very staple cool हाँ, down stretch. कूल डाउन स्ट्रेच. या स्ट्रेचिंग से याद आया कि काफी स्ट्रेच कर दिया हमने बातें एक्चुअली. हाँ. काफी स्ट्रेच आउट हो गया, तो अभी हम थोड़े क्लोजिंग थॉट्स देते हैं एंड फिर देन दिस इज इट. फिर क्लोजिंग थॉट्स, एनी क्लोजिंग थॉट्स बताओ यार. संत तू बता. ऑल इन ऑल, या कुछ एडवाइस दी है तेरे को, या फिर कुछ और बोलना है, सेम फॉर सपरा, मतलब या मिलके कुछ बोलना है, एनीथिंग, या तो मतलब मैं कुछ बोलना है यही कि बोलूंगा, थिंग्स यू विश यू न्यू बिफोर स्टार्टिंग, इन सब की चीजें कुछ. things I knew, I would say more about nutrition. I guess the knowledge about nutrition should be taught very thoroughly in our curriculum, I guess. मतलब I guess we are devoid of things about nutrition. मुझे ऐसा फील होता है. और तो एक न्यूट्रिशन बता देंगे तो मार्केट कैसे चलेगी फिर, बकेंगे नहीं चीजें. ये सब लिख दे, ये सारे मिलके पागल बना रहे हैं. सारे मिलके सही में गवर्नमेंट आंटी राइट है बिल्कुल. सो वही है कि यार न्यूट्रिशन के बारे में अच्छा पता होना चाहिए हमें, मतलब वी शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट व्हाट वी आर टेकिंग इन एंड व्हाट वी आर कंज्यूमिंग. And something that my instructor told me, be better every day. Be a little better every day. Be better every day. That's how I work. Yeah. Sanchit? Sanchit? Don't be the bro guy. Don't be the bro science guy and go like मतलब प्रोटीन पे इतना मत जाना. मतलब ठीक है जाना है तो, but you need to take care of other things as well. तुम्हारी डाइट कैसी है, क्या है, portions very important. और I mean just research about it. You'll get a lot. न्यूट्रिशनिस्ट के पास तुम जाओगे, वो तुम्हारे को, अगर मैं न्यूट्रिशनिस्ट होता ना और सपना मेरे पास आता, तो मैं उसको पूरी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देता. मैं उसको हमेशा एक सेशन में इतनी इन्फॉर्मेशन देता कि वो वापस आए मेरे पास. So I didn't spend a single penny on trainers or nutritionists. That worked for me. That might not work for you because I am a Reddit whore. I'll go on Reddit and read for days. But if that's not for you, get a nutritionist. It wouldn't be very bad. It will definitely help, I'll say. खुद कई लोग नहीं कर पाते. और वर्कआउट के लिए whatever works, whatever your goal is. My goal whatever works out for you. मतलब मेरा गोल कभी भी बॉडी बिल्डिंग नहीं था, तो मैं उस चीज में इतना गया नहीं. अच्छा. my thing was like रनिंग एंड कैलिस्थेनिक्स. हाँ, रनिंग में करता हूँ बिकॉज रनिंग मेरे को पहले पसंद नहीं थी. नाउ आई एम ऑब्सेस्ड विद इट. लाइक एडिक्शन है. एंड मतलब मैं 5K पहले रन कर लेता था, नाउ आई कैन रन 10K. अब ऐसा है कि 5K के बाद ना पैर एक तरह से मतलब सुन हो जाते हैं. समझ रहा है, मतलब जैसे इफ दे गो नंब एंड यू कैन रन फॉर आवर्स देन. तो मतलब वही सीन है जैसे अगर तुम किसी स्मेल में बैठे हुए हो एंड देन यू स्टॉप स्मेलिंग दैट बैड स्मेल. तो वही है, अगर तुम 5 किलोमीटर भाग लिए उसके बाद पैर दे आर कंडीशनड देन एंड देन आई कैन रन टिल 10K. सो बट डेफिनेटली स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम रनिंग के बाद स्ट्रेच नहीं करोगे, आई हैव हैड सो मेनी नाइट्स जहाँ पर मेरे को नींद खुली थी बिकॉज माई लेग क्रैम्प्ड. I can't tell you the pain that you have if you don't stretch. I felt मतलब मैं lazy हो जाता था कि चल stretch देखा जाएगा जो होगा.
doesn't work. मैं अभी भी अगर रनिंग करने जाऊंगा ना और मेरा मन नहीं करेगा तो I won't stretch. That is me. तो ठीक है, ठीक है. क्लोजिंग रिमार्क यही है, मोटे साले पतला हो गया तू. सबरा सेम टू यू बोल दे, सेम टू यू. Same to you, bro. Same to you. मोटा हमने कॉलेज में अपने दोस्तों से मोटा हाथी गैंडा बहुत सुना है, तो अब हम वी डोंट टेक इट पर्सनली, अब हम उसको अपने आप को मॉक करते हैं मोटा हाथी गैंडा बोल के. that is not body shaming for us because it's from friends, but सालों किसी ने भी कमेंट कराना नीचे, I will find you and I will kill you. नहीं not kill you, like okay, I will make you run. हाँ, I will make you run. Better. I'll say साले देख इतना लगता है. This is what it takes. Yeah. ठीक है, सही है, मजा आया. काफी टाइम हो गया सर, 3 घंटे में लगा दिए, 2.5 घंटे लगा दिए शायद. टॉपिक इतना बड़ा था यार, अभी तो हम 1 घंटा और बोल सकते हैं. हाँ मुझे पता है. आई एम प्रीटी श्योर कि इस एंड तक कोई नहीं पहुंचा हो, हम ही 3 ही है बस. तो क्लोजिंग रिमार्क्स जो है ना हमारे लिए ही है. जो हमारे क्लोजेस्ट भी फ्रेंड्स होंगे ना, वो भी साले पूरा एपिसोड नहीं देखेंगे. हाँ चलो कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ. ठीक है, चलो ठीक है. थैंक यू गाइस ये करने के लिए, शुक्रिया. थैंक यू विनी. नो प्रॉब्लम. थैंक यू, तुम दोनों टाइम दिया 3 घंटा.